Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, we are a social science teacher, and today we are going to revise history chapter. Right? History nationalism in Europe, first chapter. So open your book. Turn by turn, I'll tell you the important questions and then heading or hint. Wherever you face problem कि मैम ये नहीं आता, मैम please clear this question, then I will clear that question. Fine. So all 3 marks and 5 marks question we will do today, not 1 mark or MCQs. Right? हाँ जी, ओपन योर बुक, दिस वन स्क्रीन पे देखो. नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट चैप्टर. नेशनलिज्म इन यूरोप. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्रेडरिक सूरज पेंटिंग इन 4 वर्जन्स. कॉपी पे लिखो बेटा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखो. ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट. मैं भी लिखती हूँ बेटा बोर्ड पे, आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस लिखो. यू विल नॉट राइट आंसर्स, आंसर नहीं लिखने हैं, ओनली क्वेश्चंस. ओके. Write down today's date, 22 March. Chapter Nationalism in Europe. History. Chapter Europe. Long answer. Okay. Question number 1. Beta camera on. Gurpreet, Sahilpreet, Astik Joshi और Taran, camera on. Yes. Question number 1. फटाफट लिखते जाओ बेटा. और जिस क्वेश्चन में जहां दिक्कत आती है मेरे को बताते जाना. Describe Frederick Suraj painting in 4%. Describe Frederick Suraj painting in 4 versions. Describe Frederick Suraj painting in 4 versions. Question number 2. अच्छा, ये क्वेश्चन करना कैसे है? अपनी अनम्यूट योरसेल्फ. अंश ध्यान से सुन लेना बेटा. अपनी, how will you attempt this question if you want to take 5 marks from this question? Ma'am, I will make the headings. Points and then we will explain them. पहले एक चीज और देनी है. Introduction. Introduction. Here you will write an intro. Then first point, underline, explanation. Second point, underline, explanation. Then 4 points. इसके 4 हो जाएंगे. The 1 introduction and 4 points. So this question carry 5 marks. Answer you know already because we have marked on book. Right? Video on, Aradhya. हाँ शुभम. हाँ बेटा. मैम मैं ना देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब किसी को भी, मतलब बोर्ड नहीं दिख रहा मेरे को. अच्छा. मैं एक बार रीजॉइन कर लूँ? क्या कर लो? रीजॉइन कर लूँ? रीजॉइन कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वैसे आस्तिक बोर्ड विजिबल है ना? आस्तिक अनम्यूट करी. यस मैम, विजिबल है. ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2.
What was the major change that occurred in the, ये रब करके लिख रही हूं मैं, फिर कैमरा सेट करना पड़ता है. Now I'm going to rub it. What was the major change? This is question number 2. What was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution in Europe. Due to French Revolution in Europe. तरन कैमरा ठीक कर बेटा. Beta, you will get this answer from page number 5. Shivansh, unmute yourself. शिवांश, ये क्वेश्चन कैसे करना है 5 मार्क्स में? व्हाट विल बी द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर दिस आंसर इफ यू वांट टू गेट 5, नॉट 4.5, 5. हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन शिवांश? यस मैम. बेटा ये क्वेश्चन कैसे लिखना है? हमने पेज नंबर 5 पे है ये. अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, या फिर another form of question is impact of French Revolution on the other countries of Europe, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? Ma'am, we will give a introduction in the question. ठीक है, इंट्रोडक्शन, देन And we will write 4 other points. हाँ जी, नहीं इसके 5 ही बन जाएंगे, इसके 5 ही पॉइंट्स बनाएंगे. ठीक है, इसके 4 नहीं बनेंगे, इसके इंट्रोडक्शन प्लस 5 पॉइंट. You will write intro, then first point, then second point. ठीक है? Answer you know ना? Show me thumbs up if you know the answer. पेज नंबर 5 पे वाइंड अप मैंने करवाया हुआ आपको पहले. थैंक यू वेरी मच शुभम, हर्षवर्धन, अंश, शिवांश, यादविंदर, अपनीत. नमन, आंसर क्लियर है ना तुझे? साहिल प्रीत, ठीक है बेटा. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. आंसर विल बी पेज नंबर 5. फिर भी अगर नहीं मिलेगा आंसर तो मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू. डन बेटा? Now question number 3. Now I am going to dictate. बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. What was Napoleonic Civil Code 1804? What was Napoleonic Civil Code 1804?
Explain any 5 provisions. Explain any 5 provisions. Explain any 5 provisions. And beta, you will get this answer from page number 6 and 7. Taran, Simran, Gurpreet, Sahil, Nikita, video on. Page number 6 and 7. 5 marks answer. Thank you, Aradhya. Tamanna, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning. Beta, tell me how to do this question if you want to get 5 marks full. First, ma'am, we have to give a brief introduction. Then we have to write proper 5 points with the headings. Okay. And you know the answer? Yes, ma'am. Chalo, theek hai. Thank you very much. Hanji, others people know the answer. Show me thumbs up if you know the answer. Napoleon wale ka. Okay, thank you. 100 times we have done. Theek hai. Thank you. Thank you very much. Now next question. Question number 3. Question number 4, sorry. Next page number 8. जहां आपको ये दिखेगा ना मेरी स्क्रीन पे देखो. देखा बेटा? हाँ जी, क्वेश्चन है आपका, कॉपी पे लिखो. What was the political condition of Europe in mid 18th century? क्वेश्चन कॉपी पे लिखो. What was the condition of Europe in mid 18th century? What was the condition of Europe in mid 18th century? शिवांश, कैमरा ठीक कर बेटा. Yes, you will get this answer from page number 8. Page number 8. Now take a book in your hand. अब इसकी मैं headings बोल रही हूँ, points तो exactly वैसे ही आएंगे. ठीक है, तो you will mark on book, you will not write on copy. Page number 8, the making of nationalism in Europe. Show me thumbs up if you people are ready to mark. Okay, thank you very much. Thank you. हाँ जी, second line. What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose rulers and their autonomous territories. This is introduction. Mark on book, don't write answer on copy. This is introduction. Now first point, Eastern and Central Europe. ये heading दी मैंने, बाकी explanation लिख लेना. Second point, Habsburg Empire. This is heading. You have already marked the answers and explanations. Good morning, ma'am. Good morning, Krish. The second point is the Habsburg Empire. हाँ जी, third out. In Hungary. This is third point. One line explanation only, Hungary wali. Next line, in Galicia. This is fourth point.
Last point, fifth point. Transylvania. Transylvania. And last it is written na, such differences से लास्ट तक कंक्लूजन लो. Such differences से लास्ट तक emperor to the emperor. This will be conclusion. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना समझाने समझने वाला कम है, इसको आपको बाय हार्ट लर्न करना है. चाहे रट्टा लगा के लर्न करो, चाहे लिख लिख के लर्न करो. कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी पॉलिटिकल कंडीशन थी यूरोप में, किस किस एरिया में, दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. या फिर उसको रिटर्न में प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपको खुद ही लर्न करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेम पेज, पेज नंबर 8. एंड क्वेश्चन इज, हियर इट इज रिटन अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. आपको दिखा होगा. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कॉपी. बुक पे नहीं लिखना, कॉपी पे लिखो. क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कौन सा होगा हर्षवर्धन? हर्षवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम 5. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू बेटा. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5. What was the role of aristocracy and new middle class? What was the role of aristocracy and the new middle class what was the role of aristocracy and new middle class for the nationalism in Europe? For the nationalism in Europe. Page number 8. This paragraph is the answer of aristocracy. ये सारा का सारा aristocracy है, इसी में से इसके 3 सब पॉइंट बनाने. You have already done in the class. इसी के 3 पॉइंट aristocracy. On next page you will find page number 9. Here you should write here. Please यहाँ पर अपने हाथ से लिखो, स्क्रीन पे देखो बेटा. Write here role of middle class. ये खाली जगह है ना, यहाँ पर लिखो role of middle class. And make 3 points from this paragraph. Next question. कॉपी पे लिखोगे आप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. कॉपी पे लिखोगे बेटा. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. Explain the concept of liberal nationalism which developed in Europe in the early 19th century. In the early 19th century. In the early 19th century.
नाउ आंसर बेटा, पेज नंबर 9, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9. What did liberal nationalism stand for? स्क्रीन पे देखो, here it is written, what did liberal nationalism stand for? दिखा आपको? अब यहां से सबसे पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन, देन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. हाँ जी, फर्स्ट टेक इंट्रोडक्शन फ्रॉम आइडियाज. बेटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सबसे शुरू से बता रही हूं मैं. आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी अप टू लॉ, before law, before the law. This will be intro. This will be introduction. Next it is written politically. Please underline it. This is first heading, politically. Then second paragraph, where it is written ना, equality before law did not necessary. स्क्रीन पे देखो बेटा, जहां मैंने बुक रखी है देखो, जहां लिखा ना येट इक्वालिटी, सेकंड पैराग्राफ, इसके ऊपर एक हेडिंग बनाओ सोशली. एक हेडिंग बनाओ सोशली, और यहीं से इसके 3 सब पॉइंट बना लेना. ऑलरेडी यू हैव मेड. फिर भी कोई दिक्कत आएगी काम करने में, लर्न करने में, तो मुझे बता देना, मैं एक आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ लास्ट पैराग्राफ इन द इकोनॉमिक स्फीयर. दिस विल बी नेक्स्ट हेडिंग, और इसको अंडरलाइन करो. इकोनॉमिकली, अपने हाथ से लिख लो, इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली. डन बेटा? चलो, इनफ, इतना ही इनफ है. आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, नहीं तो भूल जाओगे आप. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी शुरू होगी वो हम कंजर्वेटिज्म से शुरू करेंगे. यहां से क्वेश्चन दोबारा बनवाने शुरू करूंगी. ठीक है? हाँ जी, अंश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. यस मैम. अंश कंजर्वेटिव से कल करेंगे. ठीक है, कंजर्वेटिव तक मैंने आज करवा दिए. हाँ, मैंने टोटल क्वेश्चंस यू हैव डन, काउंट करना जरा. 6 क्वेश्चन. चलो ठीक है, बस आज का टारगेट है, यू विल लर्न दिस 6 क्वेश्चन. यू विल नॉट राइट इन कॉपी, और कॉपी पे पहले लिखे हुए हैं आपने. ओके, एंड डायरेक्टली यू विल लर्न फ्रॉम बुक ऑनली, या फिर कॉपी से लर्न करना, बट नो रिटन वर्क. ओके, चलो, शो मी थम्स अप इफ दीस 6 क्वेश्चंस क्लियर टू यू. फिर आगे चलते हैं. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू तरण, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. नाउ ओपन योर कॉपीज, और एक छोटी सी हेडिंग बनाओ, एमसीक्यूज. अब फटाफट मुझे आंसर देते जाना. ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो कॉपी पे. आई होप यू विल नॉट आस्क फॉर ऑप्शंस, क्योंकि अब तक हमारे यूरोप चैप्टर की काफी अच्छे से तैयारी हो चुकी है. एंड आई होप यू विल नॉट आस्क फॉर ऑप्शंस. एमसीक्यूज हैं, बट ऑप्शंस नहीं दूंगी मैं. जरूरत पड़ेगी तो दे भी दूंगी, कहोगे तो मैम ऑप्शंस दो, तो मैं दे भी दूंगी. ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग बनाओ एमसीक्यूज, चैप्टर 1 हिस्ट्री यूरोप. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सूरो. पहले क्वेश्चन लिखो, अभी नहीं किसी ने हैंड रेज करना, मैं खुद पूछूंगी आपसे. व्हाट वाज द थीम ऑफ द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सूरो. What was the theme of the painting of Frederick Suro? यादविंदर, अनम्यूट करना जरा.
Yes, ma'am. यादविंदर, you have note down all 6 questions बेटा रिवीजन के लिए. Show me your copy. Ma'am, कॉपी दिखाना. ओके ठीक है बेटा, राइट बेटा, राइट राइट. सक्षम, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. कैमरा के आगे कॉपी दिखाना. ओके, वेल डन, वेल डन. शुभम, शुभम ने लिखे होंगे. चलो ठीक है, आई ट्रस्ट यू. हाँ जी, ऑप्शंस. ठीक है शुभम, ठीक है शुभम, थैंक यू बेटा. हाँ जी, ऑप्शंस लो. ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सोशलिज्म. आराध्या लिखो. ऑप्शन बी सोशलिज्म. ऑप्शन सी कैपिटलिज्म. कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी. कैपिटलिज्म. सिमरन, यू आर नॉट राइटिंग बेटा. गुड मॉर्निंग सिमरन. Good morning, ma'am. बेटा लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. ठीक है ठीक है, ओके. हाँ जी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ, नन ऑफ द अबव. अब क्लास मत छोड़ के चले जाना क्योंकि आपकी बारी आ गई है बताने की. एंड मैं पूछने वाली हूँ दिस आंसर फ्रॉम तरनजोत. तरनजोत, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कैमरा के सामने आ माय डियर. हाँ, अनम्यूट करो तरन. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? मैम कैपिटल. अच्छा, कैपिटलिज्म था वो. क्या हो गया बेटा, फर्स्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, फ्रेडरिक सूरो ने इस पे थोड़ा ना पेंटिंग बनाई थी. कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या होता है? सारी की सारी मनी एक बंदे के पास. ऐसा तो थोड़ी ना सपना था उसकी पेंटिंग में. तरन थोड़ा रिवीजन शुरू कर बेटा. हाँ जी नमन, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, व्हाट वाज द थीम ऑफ फ्रेडरिक सूरो पेंटिंग? Socialism. नॉट सोशलिज्म, नॉट सोशलिज्म. हाँ जी अंश. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी उसका सपना था. यार आप फोटो कैसे भूल गए? आप फोटो देखो, फ्रेडरिक सूरो की फोटो याद करो. मैं दिखाती हूँ, रुको जरा. मेरे पास भी बुक है, देखो मैंने बुक खोली और मुझे ये फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग नजर आई. अब बेचारे ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, यूटोपियन विजन दिखाया है, तो क्या वो बेचारा कैपिटलिज्म मांग रहा है? देखो तो कहता सारे इकट्ठे होके रह रहे हैं, किंग और क्वीन चले गए, जीसस क्राइस्ट है, एंजल है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सब जगह फ्रेटर्निटी है, सब खुश रह रहे हैं. ये यूटोपियन विजन था, ये था सपना फ्रेडरिक सूरो का. और कैपिटलिज्म थोड़ी है इसमें कि एक बंदा पावरफुल है, इसमें डेमोक्रेसी है. तो उसकी पेंटिंग का थीम क्या था? डेमोक्रेसी. राइट बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखो बस. नेक्स्ट एमसीक्यूज, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन. The French Revolution occurred in dash. Question number 2. The French Revolution occurred in dash. The French Revolution occurred in dash. तरन कैमरा ठीक कर बेटा. Yes. The French Revolution occurred in dash. चल बलराज, अनम्यूट योरसेल्फ. ऑप्शन के बिना ही आंसर बता तो देन मैम विल बी हैप्पी.
कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? 80-40 नहीं, 9th वाला क्वेश्चन है। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी, लुइस 16 किंग था, इन विच ईयर? I don't know ma'am. ये क्या बात हुई बलराज, पहले लेसन में से हमें दिक्कत आनी शुरू हो गई है। यादविंदर? मैम 1789। ओके, साहिल? 1789। Men 1789. अच्छा, आस्तिक? Ma'am, I have a doubt in previous question, like the theme of painting of Frederick Sorio. It was both a democratic and republic as given in book, but in options there were separate. डेमोक्रेटिक और But ma'am, republic was also the theme. बट रिपब्लिक इज नॉट ऑप्शन। Ma'am, it is written the dream of worldwide democratic and social republics. सोशल रिपब्लिक है ना, सोशल रिपब्लिक इज नॉट ऑप्शन, तो डेमोक्रेसी। Ma'am, but republic is given. रिपब्लिक इज गिवन ऑप्शन? नहीं, रिपब्लिक तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो डेमोक्रेसी विल बी द Okay, राइट आंसर। अगर Okay, दिखा हो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक तो फिर वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समटाइम आवर आंसर विल डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस वी गॉट। ठीक है, हाँ जी साहिल? Yes. Yes, ma'am. व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर? 1789. वो तो ठीक है, बट मुझे कितना खराब लग रहा है, तेरी शक्ल नहीं दिख रही तो। हाँ चलो, राइट आंसर 1789। वीडियो ऑन करके बैठा करो, पता नहीं क्या दिक्कत है आप लोगों को। हाँ जी, now I am going to wind up the class and you will revise these 6 questions. Nothing to write in copy, only and only learning. हाँ, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो जरा लिख के लर्न कर लेना। फॉर एग्जाम्पल द सेम क्वेश्चन पॉलिटिकल कंडीशंस वाला, political condition of Europe. That question is little difficult, so you have to write while learning. Chalo, thank you very much and have a wonderful day ahead. Thank you so much, beta.